Dr. Ashutosh here. Today we are going to talk about JRship after BDS. See, if you are not going for MDS after completing your BDS, or if you are not in mood of opening your own clinic for some time or some years, so you can go for JRship somewhere. See, many institutes in India as well offering GRC for 1 year, like AIMS New Delhi, AIMS Kalyani, AIMS Jodhpur, AIMS Bhopal, AIMS Gorakhpur, even PGIMR, Lady Harding Medical College, Maulana Azad Medical College, CMC Vellore, CMC Ludhiana as well. If we are going to talk about the selection procedure in AIMS, for AIMS Delhi you have to give INICET exam for JRship as well as MDS. If you are getting a good rank within 20 or 25, then definitely you will be able to counseling for MDS seats, and if you are getting good rank for 100 or 120, then you may go for AIMS Delhi JRship. Actually, I was also shortlisted for AIMS Delhi JRship, but I am going for MDS right now, so I am not joining it or not going for interview. So the selection procedure for AIMS JRship is first you have to give for Delhi. I am telling you, for Delhi AIMS JRship you have to give the INICET examination, in which you have to secure at least 100 rank, then probability is good. And if you have secured 100, 200, 300 rank, then you may apply for it. It completely dependent upon vacancy, how much they require, how much vacancies they require actually. And second thing is, if you are not doing your if you are not giving exam for INICET, then you may also get applied. It is completely based upon your final year BDS marks as well, and complete aggregated marks of BDS examination. If you are not applied for INICET, then condition I am asking only. So the probability of selection for a non-academic junior residentship in AIMS Delhi, if you are not giving INICET exam, is very low. If you are secure very good rank within in INICET exam, then it's your probability, then you can go for INICET AIMS JRship. This year AIMS Delhi offered 8 seats for JRship examination, and they are opening their application form in June only. And people who giving the examination of INICET as well as who are not giving, they can apply for it. I am also applied for it, and I get shortlisted for interview, but I am not going because I opt MDS this year. And secondly, second thing is that if we are talking about other AIMS like AIMS Jodhpur, AIMS Bhopal, AIMS Kalyani, AIMS Jammu Kashmir, AIMS Deoghar, AIMS Gorakhpur, then for other AIMS Raebareli, for other JRship, you have to give an examination which is based on paper-based online examination, and after that you are shortlisted for interview. And one more thing, if you are done with all article in your entire BDS, means a BDS student should write at least one article. At least one article is written by them who having the more probability for selected in AIMS JRship in like Bhopal, Bhubaneswar and all AIMS except Delhi. इस बार भी जो फॉर्म आया था एम्स भोपाल से आया था, उसमें 2 वैकेंसीज थी, एक जनरल के लिए थी और एक जो थी वो ओबीसीज के लिए थी. तो उसमें जो था वो सबसे पहले उनका रिटन एग्ज़ाम तो होना ही था, साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि उन लोगों को वो वेटेज देंगे जिन्होंने अपने पूरे BDS में एक आर्टिकल उनका सबमिट हुआ हो या उनके नाम से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ हो. तो अगर आप अपने पूरे BDS लेवल पे कोई एक आर्टिकल पब्लिश करा लेते हैं, तो आपको एम्स में JRship में बहुत ईजी आप क्या बोलते हैं सेलेक्ट हो सकते हैं. इट इज़ नॉट इवन फॉर JRship ओनली. इफ़ अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आती है ऑन द बेसिस ऑफ BDS और MDS में तो आपको कराना ही है आर्टिकल पब्लिश,
बट अगर आप BDS लेवल पे अगर आप कोई आर्टिकल अपनी पब्लिश करा लेते हैं और कोई जॉब आती है BDS लेवल पे, तो आपको उस आर्टिकल का वेटेज दिया जाता है और आपकी सिलेक्शन का चांस जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। थर्ड इज की क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें अभी एम्स जोधपुर से आया था राजस्थान से, उसमें टोटल 8 सीट्स थी जिसमें 5 जर्नल के लिए थी और 3 अदर कैटेगरी के लिए थी। उन्होंने डायरेक्ट ये तो नहीं लिखा था कि क्या बोलते हैं आपको आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए, उन्होंने लिखा था कि सबसे पहले फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरिए और नीचे एक कॉलम था आर्टिकल का कि आपके नाम से कोई आर्टिकल है या नहीं, मीन्स वो भी इनडायरेक्टली आर्टिकल की बात कर रहे हैं कि आपके पास आर्टिकल पब्लिश है या नहीं है। उसमें भी वही सिलेक्शन प्रोसीजर था कि सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना था जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू क्लियर करना है और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपका अगर आर्टिकल पब्लिश्ड है तो आपका जो बायोडाटा होगा, जो आपका CV होगा, वो बहुत ही स्ट्रांग होगा BDS लेवल पे। इसके बाद हम बात करें PGI-MR की। PGI-MR में 2 तरह की होती है JRशीट। एक तो आपकी JRशीट होती है जो वो रिक्वायरमेंट निकालते हैं, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में चाहिए होता है, वो भी आपकी होती है, रिटन एग्जाम के बेसिस पे होती है, फिर वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। सेकंड जो होती है वो आपकी पेड इंटर्नशिप होती है। कोई स्टूडेंट है उसने BDS क्लियर किया है, वो चाहता है कि हम मौलाना से करें, PGI-MR से 1 साल का इंटर्नशिप करें ताकि उसके बाद हम कहीं प्रैक्टिस करें तो फिर हम वहाँ पे लगा सकें कि हमने यहाँ पे इंटर्नशिप किया हुआ है यहाँ, या फिर हम यहाँ पे जूनियर रेजिडेंस रह चुके हैं। तो पेड इंटर्नशिप जो होता है उसमें आपको खुद से पैसे भर के इंटर्नशिप करनी होती है उन कॉलेजेस में, और जो JRशीट होती है उसमें वो पैसे देते हैं। एम्स जोधपुर में जो आया था JRशीट की वैकेंसी, उसमें ऑलमोस्ट 92,000 पर मंथ था फॉर JRशीट। ये 1 साल का ही होता है, 1 साल बाद आपको हटा दिया जाएगा, फिर वो INICT एग्जाम होगा या जो फ्रेशर्स आएंगे उनको रखेंगे। JRशीट के लिए आप कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि हम कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो JRशीट के लिए आप बस मिनिमम 2 साल में अप्लाई कर सकते हैं। पहला जब आपने इंटर्नशिप खत्म किया है वो करंट ईयर कर सकते हैं, या फिर 1 साल उसके बाद से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं JRशीट के लिए। वो आपको 2 चांस देंगे, 2 ही चांस पे आपको JRशीट क्या करना है, अप्लाई करना है। उसके बाद हम बात करें, ये हो गया। इसके बाद लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी आता है, वहाँ पे MDS की भी सीट है ओरल सर्जरी में, जो कि जनरल कैटेगरी है और समटाइम फीमेल कैटेगरी आती है, तो आप वहाँ से भी JRशीट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद मौलाना आज़ाद से आता है, हर डिपार्टमेंट में आता है मौलाना आज़ाद से, जहाँ पे आप JRशीट की फॉर्म फिल कर सकते हैं। JRशीट करने के साथ आप अपनी MDS का प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कोई एकेडमिक लोड नहीं होता है। आपका जो अभी क्लिनिकल डिपार्टमेंट चल रहा है, जैसे OS चल रहा है, एंडो चल रहा है, पेरियो चल रहा है, वहाँ तो आपको काम करना ही होगा। लेकिन जहाँ आपको कम्युनिटी स्टार्ट हो गया, जहाँ पे आपको ऑर्थो स्टार्ट हो गया, ये सब डिपार्टमेंट स्टार्ट हो, वहाँ आप अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। 1 साल JRशीट के बाद भी आप MDS का एग्ज़ाम देकर अच्छा रैंक पा सकते हैं। इसके बाद हम आगे की बात करें तो फिर एम्स गोरखपुर से भी निकलती है वैकेंसी, जो कि इंटरव्यू बेस्ड पे होते हैं। अभी जो नए एम्स खुल रहे हैं, लाइक देवघर खुला है, रायबरेली खुला है, गोरखपुर खुला है, कल्याणी खुला है, तो इन सब एम्स में वो इंटरव्यू बेसिस पे ले रहे हैं आजकल कैंडिडेट को। JRशीट का जो समय सीमा है वो 1 साल है, 1 साल के बाद आपको हटा दिया जाता है। तब तक में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, उस अर्निंग से या तो आप क्लिनिक सेटअप करने आगे, या फिर वो पैसा बचाकर आप आगे प्राइवेट MDS के लिए ऑप्ट कर सकते हैं कहीं पे। बट हाँ, प्राइवेट MDS के लिए वही है कि आपको एटलीस्ट नीट MDS क्वालिफाई करना होगा, तभी आपका कहीं पे जाकर क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो ये सारा क्वेरी था मेरा और ये सारा इन्फो था आज JRशीट के लिए। JRशीट अच्छा है अगर आपको आगे चल के प्रैक्टिस करनी है, या आपको कुछ टाइम रुक कर MDS करना है, अभी आपके पास पैसे नहीं है, आप JRशीट करिए, उसके बाद पैसे का अरेंज हो, नीट MDS एग्जाम दीजिए, फिर आप MDS करिए। सो आज के वीडियो में इतना ही, आगे मैं आपको और गाइड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। थैंक यू। और वीडियो में ये भी बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।